Namaste and welcome everyone to my YouTube channel Commerce Studio by Priya. So today we will discuss about the definition of economics. The definition which is given by the various renowned economists Adam Smith, Marshall, Robbins and Sam Lucens with examples. Firstly, let's begin with the meaning. Economics. This is a mixture of two Greek words, okios and neme, means house to manage. So basically, economics, how it is originated, how to manage the household with the limited available resources so that we can have the maximum outcome. So basically, in economics, we will study how the people use the limited resources to satisfy their unlimited wants. Means whatever we will study in the economics in the coming chapters, in the coming topics, you will see economics always we are talking about the choice making, limited resources, unlimited wants. So basically it is a science of choice making. Human wants, unlimited, sources, limited. So economics tells us how to bridge this gap. And if we have to define the economics in one line in one word, in future if you want to recall this, इसको याद रखना है कि अगर कोई पूछे how you define the economics, किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, तो हम एक लाइन में भी इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर सकते हैं. इकोनॉमिक्स इज व्हाट, मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम. मिनिमम से हमने मैक्सिमम कैसे लेना है ये हमें इकोनॉमिक्स बताती है. So these are the famous economists and who have defined the economics. Adam Smith has given the definition of wealth. Alfred Marshall, study of man in ordinary business of life. Lloyd Robinson given this definition of scarcity and choice making. And Paul Samuelson, growth oriented definition of economics. So all these economists have taken some assumptions. They have studied the society, the pattern of the people decision making, and then they defined the economics. So let's discuss one by one. First one is the Adam Smith. He has given the definition of wealth. He also known as the father of economics. And if there is a question like multiple choice question you people have in the class +2 examination, तो उसमें जैसे क्वेश्चन आता है who is the father of economics, तो Adam Smith is known as the father of economics because he has firstly defined the economics कि economics होता क्या है. तो he has studied that economics is a study of wealth. वेल्थ की स्टडी है बस. इकोनॉमिक स्टडी ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. नेशन इज व्हाट, ग्रुप ऑफ पीपल. लोगों से ही नेशंस बनती है ना, तो लोग किस तरह से वेल्थ को अर्न करते हैं, नेशन किस तरह से हेल्प करती है, हाउ इट इज बिल्ड अप. क्यों उसने ऐसा क्यों स्टडी करा? उसने लगा कि जो वेल्थ एक ऐसी चीज है जिससे हर प्रॉब्लम का निपटारा हो जाएगा. कोई भी प्रॉब्लम कोई फेस कर रहा है, कोई भी उसकी वांट्स हैं, खाने को चाहिए, पहनने को चाहिए, तो वेल्थ ही एक जो है आंसर है, रास्ता है. सो ह्यूमन वांट्स इन द सोसाइटी टू इंक्रीज हिज गेन. हाउ इट कैन बी इंक्रीज? बाय इंक्रीजिंग द वेल्थ. वेल्थ को ही इंक्रीज करके जो है हर वांट सेटिस्फाई हो सकती है. यही कहते हैं ना, पैसा है तो सब कुछ है, पैसे से सब कुछ बनता है. तो ये चीज सबसे पहले डिफाइन एडम स्मिथ ने करी. उसने बोला इकोनॉमिक स्टडी ऑफ वेल्थ है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है, उसके लिए वेल्थ चाहिए अगर हमने सबको सेटिस्फाई करना है. तो इसमें एक इनविजिबल हैंड की सपोर्ट होती है जिसको कहता है कि नेशन है, बिकॉज इट्स डिफाइंड इन द ईयर इन द 17th सेंचुरी. तो तब गवर्नमेंट्स का नेशन का इतना एक्टिव रोल नहीं होता था. तो एक इनविजिबल हैंड होता है, उसको वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए वो नेशन का होता है. वेल्थ इतना जरूरी है क्योंकि इसी से ही सारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना है. सो दीज आर द बेसिक लिमिटेशंस. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट, वेल्थ वेल्थ वेल्थ. सो एडम स्मिथ ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी वेल्थ को. उसने ह्यूमन वेलबींग और हैप्पीनेस को टोटली इग्नोर कर दिया. एंड इफ यू रिकॉल बैक एंड इफ यू कैन रीड आउट द हिस्टोरिकल इवेंट्स और पुरानी बातों को, पुरानी जो इवेंट्स हुई उनको हम स्टडी करें तो हम देखेंगे वहाँ पे ये देखा ना कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता था. क्यों होता था? कि ज्यादा काम करवाना है, ज्यादा पैसा अर्न करना है. क्योंकि ह्यूमन वेलबींग को तो हमने बिल्कुल कोई प्लेस दिया ही नहीं है. हमने क्या किया कि वेल्थ ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ह्यूमन की कोई चॉइसेस नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, किस तरह से रिसोर्सेज यूज करना है इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है इस डेफिनेशन में. बस एक वेल्थ का ही है कि वेल्थ होगा तो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, वेल्थ नहीं होगा तो सारी प्रॉब्लम्स खड़ी की रहेगी, वैसे की वैसी रहेगी. मटेरियल थिंग्स के बारे में सिर्फ बात हो रही है इस डेफिनेशन में. मनी, प्रॉपर्टी, लैंड, नॉन मटेरियल का कोई भी इसमें मेंशन नहीं है.
सो एट द एंड व्हाट वी गेट कि एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन है दैट इज मेनली फोकस ऑन द वेल्थ, कि वेल्थ किस तरह से जनरेट होगा वही हमें इकोनॉमिक्स बताती है। और इकोनॉमिक्स में हम यही स्टडी करते हैं कि वेल्थ ही है तो सारा कुछ सॉर्ट आउट है, वेल्थ नहीं है तो सारी प्रॉब्लम्स वैसे की वैसे रहेंगी। नेक्स्ट कम्स द एल्फ्रेड मार्शल्स डेफिनेशन, ही हैज गिवन सम इम्प्रूव्ड वर्जन, उसके बाद आ रही है ना, तो ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वाज द एडम स्मिथ हु हैज फर्स्टली डिफाइंड द इकोनॉमिक्स, ही हैज डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ वेलफेयर। वेलफेयर डेफिनेशन भी इसको बड़ा पॉपुलरली बोला जाता है कि मार्शल की डेफिनेशन जो है वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है। So economics is the study of man in ordinary business of life. Man in ordinary business of life. Ordinary business of life का मतलब होता है the activities performed by the human. Production, consumption, investment, these type of activity. So mankind in the ordinary business of life. How people earn and use their income to achieve welfare. तो ही एडेड ऑन द वेलफेयर। पिछले में था कि ह्यूमन सिर्फ वेल्थ को जनरेट करने के लिए काम कर रहा है, कि उसने वेल्थ जनरेट करना है। इसमें आ गया कि उसने अपने वेल्थ का यूज किस तरह से करना है ताकि उसको मैक्सिमम वेलफेयर मिल सके, और ह्यूमन के वेलफेयर से ही पूरी सोसाइटी का वेलफेयर होगा। बेसिकली ही स्ट्रेस्ड ऑन द मटेरियल थिंग, कि मटेरियल थिंग्स में इसमें है कि वो सिर्फ टेंजिबल थिंग्स की बात कर रहा है जिनको हम देख सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। मटेरियल थिंग जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी जो वो परफॉर्म कर रहा है वो हम देख सकते हैं। तो क्वालिटी, एफिशिएंसी, लव, फ्रेंडशिप, दिस आर इग्नोर्ड। सो बेसिकली इन टोटलिटी व्हाट ही डिफाइंड इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ वेल्थ प्लस स्टडी ऑफ वेलफेयर। वेल्थ की स्टडी तो है ही है लेकिन साथ में वेलफेयर भी है। वेल्थ का इस्तेमाल ह्यूमन वेलफेयर के लिए होना ही इकोनॉमिक्स है। So if we compare Smith's and Marshall's definition, Smith's definition basically focused on wealth, Marshall on human well-being. इसने ह्यूमन बिहेवियर को पूरी तरह से इग्नोर किया है, बट मार्शल स्टडीड द मैन इन द ऑर्डिनरी लाइफ, कि आम दिनों में, आम दिनचर्या में वो जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है वो अपने वेल-बीइंग के लिए ही कर रहा है। नैरो है इसका काफी स्कोप, इसने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया, सोशल एक्शंस को भी इंक्लूड कर लिया। इसकी भी लिमिटेशंस है। Marshall considered only material things in his view that can be used for human welfare and have the price, जिनका प्राइस है मटेरियल थिंग, जिनको हम यूज कर सकते हैं ह्यूमन वेलफेयर पे, वही चीजें आएंगी। इसने टेंजिबल थिंग्स को, मटेरियल थिंग जैसे मैंने बोला पहले, फिजिकल थिंग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। जो इंटेंजिबल होती हैं सर्विसेज, उसको नहीं इसने बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस दी। तो जो सर्विसेज है जैसे डॉक्टर, सीए की सर्विसेज है, इनका प्राइस है, that are also required for the human welfare, but there is no mention of intangible things, intangible services in the welfare definition of the economics. Liquor material thing है, price भी है इसका, but this doesn't lead to the human welfare. तो हरी material things जो है वो welfare नहीं करेंगी, और जो immaterial things हैं जो हम नहीं देख सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, they also lead to the welfare. नेक्स्ट कम्स दी लॉयन रॉबिन्स। अब इसकी डेफिनेशन पीछे वाली डेफिनेशन की और इम्प्रूवमेंट है। दिस इज द प्रोसेस है ना, सिस्टम वर्क करता है। पहले पर्सन ने जो डिफाइन किया, उसने जो स्टडी किया, उसमें कुछ लिमिटेशन थी, लिमिटेशन को अगले वाले ने स्टडी करके उसको इम्प्रूव कर दिया, उसके अगले वाले ने उसको। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ इट वर्क। इसी तरह से टेक्नोलॉजी चलती है। पहले टेक्नोलॉजी क्या थी और आज क्या है। तो पहली टेक्नोलॉजी में जो लिमिटेशंस हो रही होती थी उसकी इम्प्रूवमेंट ही नई टेक्नोलॉजी होती है। एंड दिस इज द वे द प्रोसेस वर्क इन दिस सब्जेक्ट ऑल्सो। सो ही इज अगेन द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, ऑथर ऑफ is nature and significance of economic science. He has given the modern and widely accepted definition of economics, scarcity. जैसे एडम स्मिथ की डेफिनेशन को बोलते हैं वेल्थ डेफिनेशन, जो सेकंड मार्शल की डेफिनेशन को बोलते हैं वेलफेयर, रॉबिन्सन की डेफिनेशन को बोलते हैं स्कैर्सिटी एंड चॉइस मेकिंग डेफिनेशन. सो ही हैज गिवन द मोस्ट accepted or you can say the maximum theories were based on his definition. उसने बोला कि इकोनॉमिक्स जो है इट स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर. क्यों? बिकॉज देयर आर रिसोर्सेज स्केर्स. ये सबने बोल दिया पहले भी, रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट ही हैज गिवन वन मोर आइडिया. रिसोर्सेज तो स्केर्स है ही है एंड दे आर हैविंग द ऑल्टरनेटिव यूजेस आल्सो. लिमिटेड भी है रिसोर्सेज और उनके यूजेस भी ऑल्टरनेटिव है. हाउ द ह्यूमन यूज दीज रिसोर्सेज
टू मीट इट्स एंड। चॉइस मेकिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग वो कैसे करता है, दैट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली मेन पॉइंट्स, की पॉइंट्स इसके क्या थे कि स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, ये सब एरियाज में होती है, ये नहीं कि सिर्फ वेल्थ जो है वो स्केर्स है, और भी चीजें स्केर्स हो सकती हैं, टाइम स्केर्स है, पानी स्केर्स है, लैंड स्केर्स है। सो दिस मेक्स इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, बिकॉज here we are studying the individual as well as the social choices. Resources scarce है और उनके alternative uses है, we have to choose for which first purpose के लिए हमने resource use करना है, secondly किस purpose के लिए हमने उसको use करना है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, बड़ा इजी सा एग्जाम्पल है, 1 घंटा है तुम्हारे पास फ्री, क्या करना चाहोगे, स्टडी, वॉच अ मूवी, टेक अ नैप, दैट डिपेंड्स अपॉन एवरी पर्सन। ये नहीं है कि एक मूवी देखना चाहेगा, एक नैप, कुछ पढ़ना भी चाहेंगे, सो दिस इज ऑल्सो ए चॉइस मेकिंग। टाइम लिमिटेड है, यू हैव टू मेक द चॉइस किस तरह से यूज करना है। सो दिस इज द इकोनॉमिक्स इन रियल लाइफ, हाउ इट वर्क्स। सो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, स्मिथ का वेल्थ, रॉबिन्सन का ह्यूमन चॉइसेस, मार्शल का मटेरियल वेलबींग, इसमें दोनों कवर हो गए, मटेरियल भी और नॉन मटेरियल भी। सब तरह के रिसोर्सेज जो है वो स्केर्स हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, चॉइस करनी है मटेरियल की भी नॉन मटेरियल की भी। नैरो, इसका काफी ब्रॉड स्कोप है रॉबिन्सन का। अभी भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इनके ऊपर बेस्ड है, यूनिवर्सल एंड साइंटिफिक अप्रोच ने यूज करी है। सो दिस इज हैड गिवन द कंसेप्ट कि डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है, सप्लाई से ज़्यादा है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, डिमांड ज़्यादा है, और क्यों ज़्यादा है, रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई वो लिमिटेड है और अल्टरनेटिव यूजेस है। क्रिटिसिज्म, दिस आल्सो हैव द क्रिटिसिज्म। इकोनॉमिक्स में ना ये सारा कंसेप्ट ऐसे ही चलता है, पहले सब थ्योरीज होती हैं, कोई भी थ्योरी ले लो, सबकी अजम्पशन है, लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, सबकी अजम्पशन है, फिर उसके बाद वही अजम्पशन उसकी क्रिटिसिज्म बन जाती है, लिमिटेशन। क्यों? क्योंकि थ्योरी को प्रूव करने उन्होंने कोई असम्पशन ले लिया, अगर वैसे नहीं होगा तो जो उन्होंने एंड सजेस्ट किया वैसे भी नहीं होगा। सो इसी तरह से हर डेफिनेशन की एक लिमिटेशन है, क्योंकि लिमिटेशन होगी तभी आगे फ्यूचर में स्कोप बनेगा उसकी इम्प्रूवमेंट। ही हैज टेकन इकोनॉमिक्स एज अ साइंस नॉट इमोशन, अगेन इट हैज इग्नोर्ड द इमोशन, doesn't consider social और ethical issues, poverty, inequalities का कोई जिक्र नहीं है इस definition में। He has discussed about the human welfare, अब human welfare सही और गलत के बीच में जो चूज करना है उसके बारे में नहीं बताया। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, राइस है, राइस का इस्तेमाल फूड के लिए भी हो सकता है और लिक्वर के लिए भी। अब दोनों ही वेलफेयर का पॉइंट है, दो अलग इंडिविजुअल्स के लिए, बट अगर हम टोटलिटी में देखें, मोरालिटी में देखें, लिक्वर इज इमोरल, फूड इज मोरल, बट फॉर वन पर्सन राइस क्या फूड उसके लिए अच्छा है, दूसरों के लिए जो लिक्वर है वो उसके लिए वेलफेयर दे रही है, उसको सेटिस्फेक्शन दे रही है। सो इसमें ये चीज को इग्नोर किया गया है। नेक्स्ट इज पॉल सैमुएल्सन इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। जैसे एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स का फादर है, पॉल सैमुएल्सन को मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर बोला जाता है, क्योंकि he has given the growth oriented definition of economics which is widely accepted, and right now the improvements the other economists are working on the improvement of this definition. So he is American economist, change आ गया, बाकी सारे ब्रिटिश थे, and he is the first American to win the Nobel Prize in the economics in 1970. So key features क्या है इस definition के? He also talks about, because ये तो है, ये resources तो scarce हैं, ये तो बात मान लो जी, economics में हमने यही बात करनी है, scarce resources हैं, उनके alternative uses भी हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, ये सारी एक्टिविटीज ने स्टडी करी है, इनके सारे रिसोर्सेज स्केर्स हैं। बट ही हैज गिवन वन मोर थिंग, इसने एड अप कर दी कि हमने प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की नीड्स को देखना है। स्केर्स रिसोर्सेज तो है, ये तो नहीं है कि कल भरपाई हो जाएगी, आज स्केर्स है। तो ही जस्ट रेज्ड अस अकॉर्डिंग टू मी ही हैज रेज्ड अ वेरी गुड पॉइंट। इसी से ही बाद में चल के सस्टेनेबिलिटी का पॉइंट आया है कि हमने आज रिसोर्सेज का यूज इस तरह से करना है, प्लानिंग इस तरह से करनी है ताकि फ्यूचर के लिए हम रिसोर्सेज को बचा सके,
या और रिसोर्सेज जनरेट कर सकें। जनरेट कैसे होंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ से हम रिसोर्सेज को जनरेट कर सकते हैं टू सेटिस्फाइड द फ्यूचर नीड्स एंड इट अप्लाइज टू बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ये नहीं है कि सरकारों ने सोचना है कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल ऐसे करना है कि कल लोगों के लिए समान रिसोर्सेज बचे। इंडिविजुअल ने भी इस तरह से प्लान करना है। अगर आपके पास आज पैसा है, उसको स्पेंड इस तरीके से हमने करना है सो दैट वी शुड हैव सम सेविंग। यही होता है ना, जो हम मनी अर्न कर रहे हैं, यूज करना है हमने कंजप्शन पे, तो उसको इन्वेस्ट भी करना है, सेव भी करके रखना है फ्यूचर के लिए। सो दिस इज द वे इकोनॉमिक्स वर्क। तो डेली लाइफ में भी इकोनॉमिक्स आ रही है, गवर्नमेंट भी इसका इस्तेमाल करेगी। गवर्नमेंट ब्रिजेस, कोई भी प्रोजेक्ट लेके आए, ब्रिज बिल्ड करने का लेके आए, फैक्ट्री एस्टेब्लिश करे, किसके लिए करती है? ताकि कल बिजनेस जो है वो बूस्ट हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इससे क्या होगा? जॉब्स क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इनकम जनरेशन होगी, इनकम जनरेशन होगी, कंजप्शन चलेगी, कंजप्शन से क्या होगा? साइकिल पूरा चलना शुरू हो जाएगा कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ का। नई फैक्ट्रीज बनेगी, एम्प्लॉयमेंट मिली, जो जिनको एम्प्लॉयमेंट मिली उनकी इनकम हुई, इनकम होगी तो वो कंजप्शन करेंगे, कंजप्शन करेंगे तो और गुड्स की डिमांड आएगी। सो दिस इज द वे इकोनॉमिक जो ग्रोथ का इंजन है वो वर्क करता है एंड दिस इज गिवन बाय द पॉल सैमुएल्सन। सो सैमुएल्सन जो डेफिनेशन है उसने कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करी। इट टेल्स अस हाउ टू यूज अवर रिसोर्सेज वाइजली टुडे। आज हमने उसका इस्तेमाल बड़े ध्यान से सोच समझ के करना है एंड हाउ टू प्लान स्मार्टली फॉर टुमारो। तो कल के बारे में सोच के हमने आज के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। इट अगेन हैज द लिमिटेशन, क्योंकि नई होगी तो नई डेफिनेशन, नया कंसेप्ट, जो इसकी डिफिकल्टीज है वो दूर नहीं होगी। टू ब्रॉड एंड कॉम्प्लेक्स। टू ब्रॉड एंड कॉम्प्लेक्स क्या है? इट इज वाइड, वेरी वाइड डेफिनेशन। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, इंडिविजुअल के भी, गवर्नमेंट के भी, माइक्रो और मैक्रो दोनों को इकट्ठा कर दिया तो ब्रॉड ज्यादा हो गई। कॉम्प्लेक्स कैसे? बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे मल्टीप्लायर है, एक्सीलरेशन है, कंजप्शन फंक्शन है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है। तो ये सारे जो टेक्निकल जार्गन्स आई एम यूजिंग, तो दैट आर इंक्लूडेड इन दिस डेफिनेशन, दैट आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स and difficult for the beginners only, but when you are used to it you will very easily grasp that concepts. Focus on the material growth. Again economics में हमने ना material growth को ही study करना है, नॉन मटेरियल्स को, जो ह्यूमन वेलफेयर, वेलबींग, इन चीज़ों को नहीं, इमोशंस को जो है वो इग्नोर ही करा जाता है। इग्नोर्स द मोरल एथिकल एस्पेक्ट्स। वी आर द डेफिनेशन लाइक वी हैव स्टडीड टिल नाउ, सब में हम मटेरियल थिंग्स को स्टडी कर रहे हैं, किसी ने भी मोरल और एथिकल एस्पेक्ट, जस्टिस होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, इसके बारे में बात नहीं करी है। assumes rationality and planning. Too much rationality means हर बंदा सोच समझ के, मैंने 1 रुपया खर्च करना है, मैं पहले सोचूंगी अगर मैं 1 रुपया आज खर्च करती हूँ तो कल के लिए मैं क्या बचा रही हूँ। तो इतनी रैशनैलिटी में कोई नहीं जाता है। तो दिस assumes the totality in rationality and planning. जो प्लानिंग भी हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, चाहे इंडिविजुअल कर रहा है, दैट आर प्योरली रैशनल, कि प्लस माइनस हर चीज का सोच समझ के किया जा रहा है। आई विल नॉट कमेंट ऑन इंडिविजुअल और गवर्नमेंट प्लान, यू विल सी दैट पता ही है गवर्नमेंट के प्लान कितने रैशनल होते हैं। सो दैट प्लान्स शुड बी अकॉर्डिंग टू हिज डेफिनेशन सो मच रैशनल, लॉजिकल होने चाहिए, एफिशिएंट होने चाहिए, जो रियलिटी में नहीं होता है। सो दैट इज अ क्विक रिवीजन ऑफ ऑल द डेफिनेशंस। लेट्स डू। एडम स्मिथ फोकस एरिया वाज वेल्थ, वेल्थ ओरिएंटेड ही थी। एल्फ्रेड मार्शल ने मटेरियल वेलफेयर को प्लेस दिया, वेलफेयर ओरिएंटेड है, वेलफेयर डेफिनेशन है। लर्नन रॉबिन्सन ने स्केर्सिटी एंड चॉइस मेकिंग को फोकस किया, साइंटिफिक एंड न्यूट्रल है कि हमने चॉइस करनी है, स्केर्स रिसोर्सेज में स्केर्स रिसोर्सेज को, अल्टरनेटिव यूजेस को रैंक अप करना है। पॉल सैमुएल्सन ग्रोथ ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्लानिंग, ग्रोथ ओरिएंटेड है इसकी डेफिनेशन, ग्रोथ के बारे में है, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के बारे में सोच के ही हमने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है। So these are the strength and limitations of these definition. एडम स्मिथ ने फर्स्टली डिफाइन किया है, चाहे अकेला वेल्थ है, बट ही हैज डिफाइंड द इकोनॉमिक्स, ही हैज गिवन द आइडिया दैट व्हाट कैन बी द इकोनॉमिक्स। उसी से ही आगे सारी इंप्रूवमेंट, सारी डेफिनेशंस बनी है। आगे की हर डेफिनेशन ने उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन किया है। So let's have the QA time, question answer time. अगर पूरी प्रेजेंटेशन लेक्चर आपने ध्यान से सुना है तो दिस इज़ वेरी इजी, बहुत इजीली ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से आया है, ओकोनोमिया, एंड विच मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स?
undoubtedly Adam Smith. Which of the following statement best defined the economics? Study of taxes, study of natural sciences, study of how people make choices under scarcity, study of historical event. Non-doubtedly C point. Robinson की definition है ये. Who gave the definition of economics as a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means? Again, Lionel Robinson. What is the central problem of economics? Allocation of scarce resources. Scarcity की बात हो रही है, limited resources की. So central problem में economics की scarce resources है. Whatever the theories you will do in the economics, all has the problem. So thank you everyone for watching and patience listening. And if you like the lecture, like this presentation, do share and subscribe the channel for more details, for more updates. Keep growing, stay compliant. Thank you very much.